Yes, we are starting with the next topic, which is following our discussion of one to one, many to one, into one to functions. The topic is inverse of a function. Again, inverse of a function I have already done with you guys during the uh, inverse trigonometric functions lecture series. So there I had explained already why and how the inverse of a function will exist. So we'll quickly revise that from that video series. Also, you can again revise what is an inverse, how does the inverse exist, and what kind of functions have inverse. So that will be the base, and from that we can then do the sums of inverse of a function. Okay, so I'll revise it here also with lesser examples, but we can revise it. So if I have a function, okay, which is going from say set A to set B, there are inputs here. Let us say the inputs are A, B, C, D. Here the inputs are, we say 1, 2, 3, 4, 5. Okay, inputs nahi, sorry, elements here. The outputs will be like, chalo, A ka we get 2, B ka we get 3, C we get 4, D we get 5. Okay, so the outputs are assigned in such a way. The output of A is 2, B is 3, C is 4, D is 5. If I want to create an inverse function out of this, the inverse function should work it in a reverse direction. Inverse function will work it in the reverse direction. It will go from B to A. So now 1, 2, 3, 4 and 5 will be the inputs. A, B, C, D will be on the output side. The output of 1 we are not going to get. It's not related to any of the elements here. The output of 2 we can say in this scenario becomes A. Reverse. Inverse मतलब reverse जाना है. B का 3 है, 3 का B हो जाएगा, 4 का C हो जाएगा, 5 का D हो जाएगा. Yes. Now we go back to the definition of a function. Definition of a function. What does a function mean? Function means every input, right, should have unique output. It is necessary for every input there should be an unique output. तो इसमें देखेंगे तो हर इनपुट का आउटपुट आ रहा है, फंक्शन है. और ये कौन से टाइप का फंक्शन है? अगर हम लोग देखें तो रेंज इतना सा है, यहां से लेके यहां तक, ये रेंज है हम लोग का. बट कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो अगर हम लोग फंक्शन देखें यहां पे, सो एवरी एलिमेंट हैज, no two elements have same output, different outputs है सभी elements का. So no two elements have same output. That means it is 1 to 1. And if we see range is a subset of codomain, we say it is into function है. So यहाँ पे function जो है ये है 1 to 1 and into. It is injection but not surjection. अब 1 to 1 and into function में problem ये है कि 1 जो है वो कोडोमेन में यूज नहीं हुआ है. उसी को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो 1 का फिर आउटपुट ही नहीं मिलता है. बट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एवरी इनपुट शुड हैव यूनिक आउटपुट. सो 1 डज नॉट हैव एनी आउटपुट एंड देयरफॉर आई विल से दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. एंड नॉट अ फंक्शन मतलब इसका ये हुआ कि ऐसे फंक्शन में विल से, ऐसे फंक्शन में इनवर्स does not exist. What kind of function I am talking about? I am talking about a function which is 1 to 1 and into function. 1 to 1 और into function में inverse नहीं exist करेगा. Okay.
1-to-1 एंड इनटू फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट्स द आइडिया विच आई वांटेड टू टेल यू थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो फिर हमारे पास तो 4 टाइप्स के फंक्शन है. सो धीरे धीरे हम लोग बाकी आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं. चलो 1-to-1 एंड इनटू नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं. यहां पे प्रॉब्लम किसके कारण हुआ, इनटू के कारण हुआ. बिकॉज इनटू है इसलिए ये एलिमेंट यूज नहीं हुआ, रिवर्स में उसका इमेज नहीं बना या आउटपुट नहीं बना. देयरफॉर वी से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन. बड़े काम करते हैं हम लोग, फिर ना चेंज कर देते हैं. फंक्शन हम लोग अलग बनाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दिस. लेट अस से again we have a, again we have b, there is a function f going from a to b. Let us say we have elements as a, b, c, d. We have here elements as 1, 2, 3. okay, completely opposite example ले लेता हूं. चलो मैं बनाता हूं many to one and on to function. देखो many to one क्यों है, why is it many to one? Because there are two inputs giving you the same output. देखो a and d both have the same output, so I can call this function as many to one function. okay, तो ये function है, यहाँ पे हर input का output है and no input gives you two outputs. सभी input का output unique है. so it is many to one and on to function है. चेक रेंज पूरा का पूरा हम लोग ने पूरा का पूरा कोडोमेन यूज कर लिया है. सो इट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव. इट इज many to one and on to function. 2 or more than 2 elements if have same output, we say the function is many to one. तो ये many to one function है and ये on to function है. Because range is equal to codomain. पूरा का पूरा codomain हम लोग का यूज हो चुका है and that we get it as range equal to codomain. So many to one and on to function है हमारे पास. Now in this function if I try to find out inverse, B to A जाएंगे हम लोग. सो यहां पे हम लोग के पास है 1, 2, 3. यहां पे हम लोग के पास है ए बी सी डी. अब यहां पे इनटू वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कोई एलिमेंट का आउटपुट नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. 1 का आउटपुट रिवर्स में ए हो जाएगा, 2 का आउटपुट बी हो जाएगा, 3 का आउटपुट सी हो जाएगा. बट प्रॉब्लम यह है कि 1 का यहां पे डी भी आएगा. And again it is opposite to the definition of a function, because function said every input has output and the output should be unique. No input can have two different outputs. So this is again failing the definition of function and it is not a function. So again we say ये तो function है, इसको तो type D बोला है हम लोग ने many to one and on to function. It is a function but its inverse does not exist. So not a function that implies inverse does not exist. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. वापस एक बार क्विक रिवीजन. If you want to again see all the examples in detail, it is present in that inverse trigo functions lecture series. Okay, so यहाँ पे inverse नहीं exist करेगा in many to one and on to function also. So 1 to 1 and into में नहीं एग्जिस्ट करेगा, into के कारण प्रॉब्लम हो गया. many to 1 and on to में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. on to है तो अच्छा है, सभी इनपुट्स का आउटपुट तो मिलेगा, बट many to 1 के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है. many to 1 में क्या हो रहा है, दो रिवर्स में 1 to many हो रहा है. 1 to many नहीं चलेगा, दो आउटपुट्स नहीं चलेगा. So finally I will come down to one particular type of function, and that function is our 1 to 1 and on to function, called as bijective, injective as well as surjective, bijective function, bijection. So we have A, we have B. यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होना चाहिए A, B, C, D आउट इनपुट्स है. 1, 2, 3, 4 अगर हमारे पास आउटपुट्स है,
let us say A the output is 2, B the output is 3, C the output is 4, D the output is 1. तो आप देख सकते हो सामने पूरा का पूरा कोडोमेन यूज हो चुका है और यहाँ पे every input has unique output 1, therefore it is a function. But different inputs have different outputs. No two inputs have same output. इसलिए ये कैटेगरी को मैं बोलूंगा 1-to-1 and on-to function. It is bijective. Bijection बोल सकते हैं हम लोग इसको. It is injection and surjection both. It is injective and surjective both. अब इसका अगर हम लोग inverse निकालने जाएंगे यहाँ पे, if we are trying to find out the inverse, F inverse, so B to A जाएगा और B to A जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स रहेगा 1 2 3 4, आउटपुट्स रहेगा A B C D और 1 का आउटपुट D आ जाएगा, 2 का आउटपुट A आ जाएगा, रिवर्स 1 का D आएगा, 2 का A आएगा, 3 का B आएगा, 4 का C आ जाएगा. And yes, in reverse we can see that every input has unique output. We see that no two inputs have same output. So reverse में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे function है ये. It is a function. It is satisfying the definition of function. So inverse function exists. So I can say यहाँ पे inverse function existed. It satisfies the definition of function. Every input has unique output 1D, 2A, 3B, 4C. It satisfies the definition of function. So therefore it is an inverse function. And notice that inverse functions are also bijections. So bijection में inverse exist करेगा और inverse function भी bijection हो जाएगा. It's also a bijection. So that is the idea of inverse of a function. Okay. So inverse function exists only in bijection, exists only in 1-to-1 and on-to functions. ठीक है. सो दैट इज द आइडिया. सो अगर मैं आपको फंक्शन देता हूं वेयर वी गेट अ कर्व लाइक दिस, ये क्यूबिक फंक्शन का कर्व ऐसा रहता है पॉलिनोमियल में. सो वी गेट अ कर्व लाइक दिस. नाउ इन दिस वेदर इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट अगर हम लोग को चेक करना है तो पहले तो चेक करना होगा फंक्शन 1-to-1 है कि नहीं है, फिर चेक करना होगा उसका रेंज फाइंड करके कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है. 1-to-1 है कि नहीं है वो तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखेंगे तो ये जो आउटपुट है y1 वो हम लोग को कहां पे मिल रहा है, x1 पे मिल रहा है, x2 पे मिल रहा है, x3 पे मिल रहा है. तो वी गेट 1 2 3 डिफरेंट इनपुट्स गिविंग यू द सेम लेवल, गिविंग यू द सेम आउटपुट. एंड देयरफॉर आई शुड से इन दिस केस द फंक्शन इज मेनी टू वन. अगर फंक्शन ऐसा इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, अगर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो फंक्शन मेनी टू वन है. सो इन दिस आई वुड से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स does not exist. बट अगर फंक्शन ऐसा है, ऐसा एक्सपोनेंशियल टाइप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो इस फंक्शन में आपको हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट मिलेगा. सो यहां पे मैं बोलूंगा फंक्शन इज 1-to-1. फिर हम लोग रेंज निकालेंगे. रेंज अगर इक्वल टू कोडोमेन आ गया तो फंक्शन को बोला जाएगा 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन. एंड इफ द फंक्शन इज 1-to-1 एंड ऑन टू, वी से द इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट. ओके. So inverse in this, because it is many to one, will not exist. Inverse in this can exist if the function is on to 1-to-1 तो है ये. So ऐसे हम लोग ग्राफ बना के हमको जो फंक्शंस मिलेगा उसमें हम लोग चेक करने वाले हैं
and we are going to find out the inverse of functions in the questions. Okay, ठीक है, तो we can now go to the examples. 1-to-1 and on-to होना जरूरी है function, then only the inverse will exist. Now, first question is, we're going to take continuous functions. Function fx is 2x plus 5. Function fx is 2x plus 5 where we have function from real numbers to real numbers. So function is going from R to R. Uska domain is the set of all real numbers. Codomain is also the set of all real numbers. Codomain is all real numbers. So इस function में what we are seeing is, ग्राफ बनाएंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन है जिसमें हम लोग को y इंटरसेप्ट जो है वो 0,5 मिलेगा, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन whose slope is 2. So positive slope वाला स्ट्रेट लाइन, it goes like this, right? डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा 2, which is a straight which is a increasing function, which tells you that it is an increasing function. So हम लोग के पास ये जो ग्राफ है, मेरे पास ये जो फंक्शन है वो लीनियर इक्वेशन का है, उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली इट इज अ 1-to-1 फंक्शन, एंड यू कैन सी इट इज कवरिंग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा. सो अपना कोडोमेन पूरा का पूरा यूज होने वाला है बाय द आउटपुट्स. देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ आई कैन से दैट function is 1-to-1 and onto. Function is a bijection. If function is a bijection, if the function is 1-to-1 and onto, that implies inverse exists. Inverse will exist. अब inverse function क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड दैट इनवर्स फंक्शन? ये देखो, इसमें सारे रियल नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा यूजिंग एरो डायग्राम, बट यस वी कैन पिक अप अ फ्यू रियल नंबर्स एंड सी हाउ द फंक्शन इज वर्किंग. हाउ द फंक्शन इज वर्किंग, फर्स्ट विल चेक दैट. तो हम लोग एक पॉजिटिव इनपुट एक जीरो इनपुट लेते हैं, तो जीरो पे हम लोग का आउटपुट मिल रहा है 5. हम लोग एक काम करते हैं 2 लेते हैं, आउटपुट 2 पे हम लोग को मिल रहा है 9. देन लेट अस टेक -2 पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है say 1. So I have taken certain inputs. -2 पे 1 आएगा, 0 पे 5 आएगा, 2 पे 9 आएगा, राइट? अब इनवर्स फंक्शन उल्टा काम करना चाहिए. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड इनवर्स. देयर आर स्टेप्स व्हिच वी नीड टू फॉलो. स्टेप 1, ये स्टेप आपको नोट करना है. स्टेप 1 विल बी राइट y as fx. Okay, that is the step 1. So we write y as fx. So हम लोग लिखेंगे y as a function of x. Y is 2x plus 5. Step 2. Step 2 we are going to write x in terms of y. So ये रिलेशन को उल्टा कर देंगे. We are going to write x in terms of y. Please note this procedure. ये सबके लिए सेम होने वाला है. For all functions का जो भी इनवर्स फंक्शन का सम रहेगा, सबके लिए हम लोग यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं. So y is 2x plus 5. Step 2, we are going to write 2x as y minus 5. We are going to get x as y minus 5 by 2. So basically हम लोग का ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है y equal to 2x plus 5
इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग अभी उल्टा लिखने वाले, हम लोग लिख रहे हैं एक्स एस वाई माइनस 5/2। सो हम लोग ने क्या किया, खाली ये रिलेशन को उल्टा लिखा है फिलहाल। ओके, सो what will happen is now y will be acting as input and you will be getting x as the output. The relation will be like y is the input, x is the output. Okay, step 3. Step 3, I would write step 3 में if f is bijection, okay, if f is bijection, then f inverse exists. So if f is bijection, then f inverse exists. So हम लोग यहां पे बोल सकते हैं y is equals to f of x implies x is f inverse y, implies x is f inverse y। ये इनवर्स का नोटेशन है। मतलब क्या है, देखो अभी आप एरो डायग्राम देखो समझेगा। सो व्हाट डू वी हैव हियर, नाउ वी कैन से हम लोग ना y को इनपुट बनाएंगे। सो यहां पे हम लोग को इनपुट में डालना है y और आउटपुट में मिलेगा x कोऑर्डिनेट। उल्टा रिलेशन काम करेगा, इनपुट विल बी y कोऑर्डिनेट, आउटपुट विल बी x कोऑर्डिनेट। सो इनपुट्स आर हियर, इसको हम लोग इनपुट्स बना देंगे 1 5 9, इसको हम लोग इनपुट्स बना देंगे। आउटपुट्स क्या आएगा, इधर से नहीं लिखना है ऑब्वियसली, हम लोग के पास ये रहा रिलेशन। ओके, सो अगर आप 1 डालोगे यहां पे, तो करेंगे 1 minus 5 minus 4 minus 4/2 minus 2। सो ये रिलेशन हम लोग को रिवर्स लेके जाएगा। 1 will give us -2। अगर आप 5 डालोगे, 5 minus 5 0, तो 5 का हम लोग को 0 मिलेगा। डेफिनेटली वो ऑर्डर्ड पेयर है। अभी इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर उल्टा हो जाएगा, 9 का हम लोग को 2 मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ द रिलेशन विल टेक यू इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो यहां पे जो इनपुट था वो वहां पे आउटपुट मिलेगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड यहां पे जो आउटपुट था वो हम लोग को बना के डालना है इनपुट इन दिस फॉर्मूला। रिवर्स प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी रिवर्स द रिलेशन। सो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को हम लोग बोलते हैं x is f inverse y। सो ये रिलेशन को हम लोग बोलते हैं f inverse y। We are writing right now the inverse function in terms of y only, so we get inverse function as y minus 5/2। Okay, I repeat the procedure. Procedure is write y as a function of x, reverse the relation, write x in terms of y. Now you make y as the independent variable, x as the dependent variable, give y as the input, and you will see getting the same here the values as the outputs. So पहले -2 पे 1 मिलता था, कौन से फॉर्मूला से मिलता है वो, y डिपेंडेंट ऑन x फॉर्मूला से। सो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है फॉर्मूला 2x plus 5। सो 2x plus 5 फॉर्मूला से आपको ये मिलेगा। और यहां पे जब हम लोग उल्टा जाने का कोशिश कर रहे हैं तब इनपुट डालना है, इसको हम लोग को इनपुट डालना है इन दिस फॉर्मूला। यस, समझा ये आपको? सो दैट इज द आइडिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन में मैं यहां पे क्या करूंगा, ये 0,5 जो है बनना चाहिए 5,0। नाउ अंडरस्टैंड,
फिलहाल यहां पे जो है वो हम लोग ने सेम ही चीज को लिखा हुआ है दो बार। एक बार हम लोग ने बनाया y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है, दूसरी बार हम लोग ने लिखा है x एज डिपेंडेंट ऑन y, बट वैल्यूज ऑफ x एंड y अभी भी वही है। इसमें आप x को 0 डालोगे y मिलेगा 5, इसमें आप y को 5 डालोगे x मिलेगा 0। सो ग्राफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट 0,5। अभी भी तुम यहां पे यूज करोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 यूज करोगे और y कोऑर्डिनेट 5 यूज करोगे, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है। यहां पे डायरेक्शन था x to y, यहां पे डायरेक्शन है y to x, बट x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है दोनों रिलेशंस में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिलेशंस में x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5 है। वैल्यू चेंज नहीं हुआ है x और y का, डिपेंडेंसी चेंज हो गया है। So if I want to write my inverse function in terms of x, very important step this is, need to understand. If I want to write this function in terms of x, right now it is x in terms of y. So हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरचेंज करेंगे x and y, और जब भी आप x and y को इंटरचेंज करोगे, your x and y coordinates will interchange now and the relation will become y as inverse function of x and the function will be written as x minus 5 by 2. So this is function written in terms of x, inverse function written in terms of x. So वापस y हम लोग ने डिपेंडेंट बना दिया on x, और ये एक नया लाइन देगा तुमको, एक नया लाइन बनेगा y is x minus 5 by 2, बट वो नया लाइन obviously has some connection with this function 2x plus 5. So x और y को इंटरचेंज करने पर ग्राफिकली क्या होता है, x और y इंटरचेंज करने पर ग्राफिकली आपको ये पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज मिलेगा, 5,0 मिलेगा राइट हम लोग ने और थोड़े पॉइंट्स लिए थे, हम लोग ने -2 पे 1 बताया था, तो लेट मी चेक हियर -2 पे 1, और उसका उल्टा हो जाएगा, यहां पे हम लोग को उल्टा मिलेगा 1 पे -2। See, these are the new points which you are getting. These are the new points which will be satisfying this straight line. So when you interchange x with y, आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है points which are on the other side of the half plane. What half plane I am talking about? I am talking about half plane created by this straight line y equal to x. ये आपको समझना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन आएगा y इक्वल टू x। ओके, ये वाला पॉइंट देखो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, y इक्वल टू x, अगर हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x का वैल्यू हमको -5 मिल जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट where they are going to intersect -5, -5, ये दोनों में सेम होने वाला है, दोनों ग्राफ्स में आने वाला है ये पॉइंट। So what I'm telling you now is we are going to have another graph which will be going like this. It is also a straight line, it is also a straight line, but इस straight line में वैल्यूज उल्टा मिलेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे f इनवर्स x इक्वल टू, विल राइट इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो सेम ग्राफ में मैं दोनों प्लॉट करके बता रहा हूं आपको, ये वाला भी फंक्शन x में लिखा हुआ है, ये वाला भी फंक्शन x में ही लिखना चाहिए, एंड वी आर इंटरचेंजिंग x विथ y, तो क्या होता है सारे के सारे पॉइंट्स इस तरफ आ जाएंगे। y इक्वल टू x विल एक्ट एज अ मिरर,
हमेशा ऐसा ही होगा. Whenever you interchange x with y, what will happen is y equal to x will act as a mirror. 0,5 का बन गया 5,0. बट इसके लिए भी एक नया लाइन बनेगा. ये सारे पॉइंट्स इस तरफ ट्रांसलेट हो जाएंगे तो एक नया पॉइंट, नया लाइन बनेगा. दैट लाइन इज x minus 5/2. उसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलेंगे. So what here written is the same. We are talking about the same coordinates. जैसे मैंने बताया आपको, सेम कोऑर्डिनेट्स है. x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5. दोनों के लिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, दोनों के लिए. बट जब हम लोग x और y को इंटरचेंज करते हैं और एक नया यहां पे हम लोग रिलेशन लेके आते हैं, इसमें आप देखो, इसमें अगर आप 5 डालोगे y विल बी 0. तो जब दोनों आपको सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो ये करना पड़ेगा. दोनों आप अगर सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन, दे आर मिरर इमेजेस विद y इक्वल टू x एज अ लाइन मिरर. बिकॉज हमको इस तरफ आना पड़ता है. यहां पे इनपुट इज 0, आउटपुट इज 5. यहां पे x इज 5, आउटपुट इज 0. देखो दोनों में x को इनपुट बोला गया है, दोनों में x को इनपुट बोलना है. खाली रिलेशन निकालते वक्त हम लोग बोलेंगे y इज अ इनपुट, x इज अ आउटपुट, और एक रिलेशन मिल जाएगा. फिर उस रिलेशन में x और y को इंटरचेंज कर देंगे, तब जाके एक्चुअली इनवर्स फंक्शन मिलेगा हमको. सो इस फंक्शन में x विल बी 0, आउटपुट विल बी 5. इस फंक्शन में x विल बी 5, आउटपुट विल बी 0. इसमें -2 डालोगे 1 मिलेगा, इसमें 1 डालोगे -2 मिलेगा. ओके, सो ये प्रोसीजर है. दिस इज हाउ यू रिवर्स द रिलेशन. देन दिस इज अ वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट, नॉट गिवन इन द बुक्स, बट अंडरस्टैंड दिस. इंटरचेंज करेंगे तो मिलेगा फंक्शन इन x. ये जो नया फंक्शन बना है उससे नया लाइन बनेगा, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन. दोनों हम लोग साथ में प्लॉट करके देखेंगे तो हमेशा इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा विल बी इमेज विथ y इक्वल टू x इज लाइन मिरर. ओके, यस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टाइम पे मैंने जो रिकॉर्ड किया था लेक्चर्स, उसमें मैंने पर्टिकुलरली इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में बात किया हुआ है. फिर बोला था इसका प्रिंसिपल ब्रांच वगैरह वगैरह सो एंड सो रहेगा. एंड दैट्स हाउ द कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रिंसिपल ब्रांचेस, राइट? सो दैट द फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू. तो वहां पे डायरेक्ट होता है y is sin x, x is sin inverse y, then we interchange, we get y is sin inverse x. दोनों के ग्राफ्स अलग है. y is sin x and y is sin inverse x का ग्राफ्स जो है वो अबाउट y इक्वल टू x. मैंने बताया था आपको शॉर्टकट है ग्राफ बनाने का. sin inverse x का ग्राफ बनाना है तो पहले sin x का बनाओ, फिर मिरर इमेज ले लो अबाउट y इक्वल टू x. सो आई वुड अगेन टेल यू, यू हैव टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स. तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेक्चर्स ओनली आई एम मूविंग लिटिल फास्टर. ओके, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स. हार्डली इट इज हाफ एन आवर. यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू दैट. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. इन द फॉलोइंग वीडियो वी आर गोइंग टू डू मोर एग्जाम्पल्स.